May, June 2022, variance 42, 5070, paper 4, alternative to practical. So let's see what we have in this paper. Seems like it's a titration thing. A student determines the concentration of aqueous potassium magnate 7, KMnO4. First of all, you should know that the 7 is the oxidation state of manganese in this whole compound. Okay. The second most important thing you should understand that this potassium magnate 7 is basically an oxidizing agent. Okay, this is an oxidizing agent. So just hold on a second. It's really sorry about my writing. Oxidizing agent. And now it undergoes titration with the solution of ethane dioic acid. By the way, it is a carboxylic acid. We have done this carboxylic acid in organic chemistry. अगर आपको याद हो हमने इसका स्ट्रक्चर आपको इस तरह से लिख के दिया था COOH. My goodness, this is C double bond oxygen. My goodness, what I'm doing. Yes, it's fine now. This is COOH and this is COOH. Okay, this is the formula of ethane dioic acid. As you have seen, इसमें एक COOH यहाँ पर है और दूसरा COOH यहाँ पर है, which means हम इसको डाई बेसिक एसिड भी कह सकते हैं या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं. Okay, because it contains 2 carboxylic functional group. And to be very honest, we have discussed this thing in Redox ka chapter that this compound is basically the reducing agent. So this is basically redox titration because ये oxidizing agent है और ये reducing agent है. Okay. Both these reactions undergoes according to the equation shown below. इसमें 2 moles of KMnO4 है और 5 moles of ethane dioic acid है. That's a very important relationship. It has 2 mole, it has 5 moles. Okay. Now the next is diagram of some of the piece of apparatus the student uses are shown. आप जानते हैं कि ये ब्यूरेट है, क्योंकि ब्यूरेट का जो टोटल वॉल्यूम होता है वो 50 cm3 होता है. पिपेट है ये, क्योंकि पिपेट के ऊपर कोई ग्रेजुएशन मार्क नहीं होता. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग कि पिपेट के आप एक फिक्स्ड वॉल्यूम मेजर कर सकते हो और वो फिक्स्ड वॉल्यूम मेजर करने की नोटेशन ये है. एंड दिस इज योर गोइंग टू बी योर कॉनिकल फ्लास्क. ओके. सो वो आपसे पूछ रहे हैं नेम 3 पीसेस ऑफ एपरेटस. ए जो है वो आपके पास ब्यूरेट है, ओके. बी जो है वो आपके पास पिपेट है, and C is basically your conical flask. All right. The student record the mass of a sample of solid ethane dioic acid. तो initially मैंने mass of ethane dioic acid जो है वो record किया है. उसके बाद मैंने dissolve the solid in distilled water, dissolve किया उसको distilled water में and makes the solution up to 250 cm3 by using volumetric flask. Okay, remember this. 250 cm3 बनाने के लिए volumetric flask चाहिए मुझे. Use apparatus B to transfer 25 cm3 of solution of ethane dioic acid into apparatus C. यानी मैंने B से C में solution के लिए यानी pipette से solution इसमें place किया. Okay. Add 10 cm3 of dilute sulfuric acid to apparatus C. Why are we adding dilute sulfuric acid in this case? यानी conical flask में हम क्यों add करें sulfuric acid? Because sulfuric acid increases the oxidizing power of oxidizing agent.
ओके, नाउ फिल apparatus A with the solution of KMnO4। इसका मतलब जो हमारे पास ब्यूरेट है उसमें हम KMnO4 का सोल्यूशन लेंगे। और ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर एक चीज भी और याद रखने की है, और वो ये कि भाई इथेन डाइक एसिड का जो सोल्यूशन होता है ना, सोल्यूशन वो कलरलेस होता है। ओके, और KMnO4 का जो सोल्यूशन है ना वो पर्पल होता है, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, तो titrate the colorless solution of this, उसने खुद भी कह दिया, with the solution of KMnO4 until the end point is reached. Repeat the titration 3 more times. See, in this whole titration, one more thing which is very, very important, you should need to notice that there will be no indicator in this titration because KMnO4 itself is a purple color, and because of its colored solution, it is used as a self indicator. Okay, so we should write this thing. Okay, KMnO4 is used as a self indicator. Okay, तो इसलिए हमने कोई सेपरेट इंडिकेटर यूज नहीं किया। Oh, that's the question. Suggest why sulfuric acid is added to apparatus C. So sulfuric acid क्यों apparatus C के लिए प्रोवाइड किया जाता है? It increases the oxidizing power of oxidizing agent and also it is used to acidify the solution. Acidify का मतलब हाइड्रोजन आयंस डोनेट कर देते हैं, और अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस हाइड्रोजन आयंस को हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन। तो हम यहाँ विद इन ब्रैकेट लिख देते हैं डोनेट प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स को हम और क्या कहते हैं? इन सिंपल वर्ड्स हाइड्रोजन आयंस। ओके, स्टेट द कलर चेंज एट द एंड पॉइंट। आप जानते हैं, मैंने बताया है आपको कि आपके पास जो इथेन डाइक एसिड का सोल्यूशन है वो कॉनिकल फ्लास्क में है, एपरेटस सी में है, राइट, और KMnO4 जो है वो एपरेटस ए में यानी ब्यूरिड में है। तो सोल्यूशन तो कलरलेस होगा इनिशियली इन द कॉनिकल फ्लास्क, और जब आप उसको KMnO4 से टाइट्रेट करोगे तो इट विल टर्न टू पिंक। तो कलर ऑब्जर्वेशन इज गोइंग टू बी कलरलेस टू pink. That's what we have discussed in the class. Okay. Now the next is the diagram shows parts of the apparatus A with the liquid levels at the beginning and the end of titration 1. Okay, initial reading है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7. Initial reading is 1.7 और final reading is 27.1. Okay. So यहाँ से हम difference determine कर लेते हैं. That's 27.1 minus 1.7 is going to be 25.4. Okay, फिर 25.9 minus 0.8 तो ये हो जाएगा 25.1। फिर फाइनल दे दिए, ये भी है, ये बताना है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको इनिशियल पता चल जाएगा। 24.9 minus 24.6 is going to be 0.3, ये आपकी इनिशियल वैल्यू होगी। ओके, वो कह रहे हैं टिक द बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स इन द टेबल, यूज टिक्ड वैल्यूज टू कैलकुलेट द एवरेज वॉल्यूम ऑफ KMnO4 एडेड इन CM3। तो बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स होंगे जिसमें डिफरेंस जो है वो 0.1 का होगा। तो 0.1 का डिफरेंस जो है वो इस सेकंड और थर्ड में मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि 24.8 है, ये 24.6 है, तो 0.1 का बेसिकली डिफरेंस हो गया है इसमें देखा जाए तो। ठीक है, सो हम यहाँ से एवरेज वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं।
तो एवरेज वॉल्यूम क्या होगा मेरे पास 24.8 प्लस 24.6 divided by 2. So 24.8 plus 24.6 is this, divided by 2 is going to be 24.7. So that's my answer, 24.7 cm cube. Okay. Now in the next, another student repeats the experiment using the same method. All right. This student uses 1.08 gram of ethane dioic acid. So guys, मुझे ethane dioic acid का mass given है, इसका MR given है, इसका मतलब I can find out the moles. एक चीज तो मुझे पता चल गया, I need to use this value and this value to get the moles of ethane dioic acid. Furthermore, इस मास को हम डिसॉल्व करेंगे बीकर में, बीकर का सोल्यूशन उठाएंगे, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लेके जाएंगे, 2 cm क्यूब सोल्यूशन बनाएंगे, फिर उसके बाद स्टूडेंट ऑब्टेन एन एवरेज टाइट्रेशन वॉल्यूम ऑफ 24.55. ऑल राइट, पहले हमारे पास कितनी टाइटर वैल्यू आई थी 24.7, दिस टाइम 24.55. वो कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन डायोइक एसिड इन 25 cm क्यूब ऑफ दिस. ओके, ऑल राइट. सो गाइस, हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि मोल्स ऑफ H2C2O4 कैलकुलेट करेंगे. हम 1.08 को डिवाइड कर देंगे 90 से. तो जब हम 1.08 को डिवाइड करेंगे 90 से, तो हमारे पास कितना आंसर है कि 1.08 डिवाइडेड बाय 90 इज गोइंग टू बी 0.012 मोल्स. ठीक है. अब ये जो मोल्स आपने कैलकुलेट किए हैं 25 cm क्यूब में है और आपने 250 cm क्यूब मेकअप किया था, राइट. सो ये हो जाएगा 0.012 सो ये जो मोल्स हैं आपके पास एक्चुअली ये 25 cm क्यूब में है, 0.012 मोल्स. ओके. और 250 cm क्यूब में कितने होंगे, कैसे पता चला 250 cm क्यूब, बिकॉज आपने सोल्यूशन को मेकअप किया था 250 cm क्यूब में, राइट. सो लेट्स सी कितना हमारे पास आ रहे हैं मोल्स. ये हो जाएगा 0.012 into 250 divided by 25 is going to be 0.12. Hold on a second. ये मोल्स मैंने इथेन डायोइक एसिड के कैलकुलेट किए, राइट. तो 0.012 into मेक सेंस. ओके. ये एक्चुअली कुछ ऐसे होगा कि ये जो आपने मोल्स फाइंड आउट किए गाइस, ये टू 250 में थे क्योंकि आपने इसको डिसॉल्व किया था इसमें. ठीक है. सो ये जो मोल्स हैं बेसिकली इस मास के थ्रू आए हैं, तो ये मोल्स एक्चुअली इस वॉल्यूम के अंदर है, आपको इस वॉल्यूम में डिटरमाइन करना है. So ये हो जाएगा 250 cm cube gives you 0.012 moles, right. तो 250 25 cm cube में कितने होंगे, ये जगह 0.012 into 25 divided by 250 is going to be how much, ये जगह 1.2 into 10 to the power minus 3 moles. थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि हुआ क्या है. हुआ ये है कि मैंने एक डिश ली, मैंने एक डिश ली, उस डिश के अंदर मैंने तकरीबन 1.08 ग्राम इथेन डायोइक एसिड लिया H2C2O4. उसको उठाकर मैंने डिसॉल्व कर दिया 250 cm क्यूब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में. सही है. ये मेरी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हो गई 250 cm क्यूब. यहाँ तक ठीक है. ये 250 cm क्यूब का सोल्यूशन बना लिया.
और जाहिर सी बात है सोल्यूशन बनाने के लिए मैंने डिस्टिल वाटर यूज किया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसमें से 25 cm³ लिया और फिर काम किया। इसका मतलब आपने इसके थ्रू जो मोल्स फाइंड आउट किए वो बेसिकली 250 cm³ में थे, राइट। तो आपने 250 में निकालने के कितने होंगे, ओके, दैट्स हाउ यू नीड टू फाइंड आउट। नेक्स्ट इज during the reaction 2 moles of KMnO4 reacts with 5 moles of ethane dioic acid. That's what we have told you initially कि important relationship है वो, ये लिखा था ना हमने यहाँ पर कि ये बहुत ही important ratio है, इसको ध्यान में रखना। तो देखो यहाँ यूज कर रहा है, वो कह रहा है calculate the number of moles of KMnO4 in aqueous potassium manganate 7। तो सिंपल सी लॉजिक है कि आपके पास MnO4 नेगेटिव है, आपके पास C2O42 माइनस है, आपके पास ये 2 मोल है, आपके पास ये 5 मोल हैं। आपने कितने मोल्स कैलकुलेट किए हैं, 1.2 इंटू 10⁻⁻3। तो बताइए ये कितने मोल्स होंगे। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते 2 से, डिवाइड कर देते 5 से, सो इट गोइंग टू बी 4.8 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स, यानी मैं 1.2 इंटू 10⁻⁻3 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, डिवाइड करूंगा 5 से, देन आई विल गेट दैट वैल्यू, ओके। ये वैल्यू मिलेगी मुझे, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन मोल पर dm³ ऑफ KMnO4। अब इशू ये है हमारे पास कि हमें कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। अब ये जो वॉल्यूम हमारे पास मोल्स आए हैं, ये इतने वॉल्यूम के अंदर हैं, कंसंट्रेशन 1000 cm³ में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 24.55 is going to be, yes, so I was right, 24.55 cm³ of KMnO4 contain how much moles, 4.8 into 10⁻⁻4 moles। सो अगर कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना हो तो मैं 1000 cm³ से कंपेयर करूंगा, सो ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 24.55। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.01955। ये मेरे पास आंसर आ रहा है 0.01955। तो मैं इसको राउंड ऑफ करके लिख लेता हूँ 0.0196, ओके। तो वो कह रहे हैं कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन ग्राम पर dm³ ऑफ KMnO4, गिव योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर्मूला दिया हुआ था हमने आपको ग्राम पर dm³ कैलकुलेट करने का, वो फॉर्मूला था कि कंसंट्रेशन इन मोल पर dm³ इनटू mr। तो कंसंट्रेशन इन मोल पर dm³ कितनी हो जाएगी, 0.0196 इंटू mr। mr हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 158, हम इसको यूज कर लेते हैं। ऑलराइट, let's see what we'll get the value into 158. So it's going to be 3.089 ग्राम। हमसे वो कह रहा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दो, तो इसको 3 सिग्निफिकेंट में आंसर देना है अगर मुझे, तो ये हो जाएगा 3.09, okay। I hope it makes sense to you. My goodness. That's the end of question number 1. That's kind of a very lengthy question. How much marks? Oh, 14 marks. Okay. Now the next question is, a solution contain 1 cation and 2 different anions. That's salt analysis, because examiner ने कहा 1 cation है और 2 different anions. The table shows the test the students does on this solution. Complete the table. Name any gaseous form. Okay. So अगर कोई भी गैस फॉर्म हो रही है तो वो बताना बहुत जरूरी है, तो हम बता देते हैं। वो कह रहे हैं to 1 centimeter depth of the solution in a test tube, add a small volume of aqueous sodium hydroxide. Okay, the cation might be aluminum ion. तो ऑब्जर्वेशन ये होगी कि भाई व्हाइट प्रेसिपिटेट्स अपीयर होंगे जब आप फ्यू ड्रॉप्स स्मॉल वॉल्यूम यूज करोगे NaOH का। व्हाइट
precipitates are formed. ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं then add more aqueous sodium hydroxide until it is in excess. This cation could also be present. This cation could also be present. तो आप जानते हैं कि जब हम NaOH ऐड करते हैं और हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं तो एल्यूमिनम आयन भी होता है और जिंक आयंस भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के प्रेसिपिटेट्स आते हैं, ठीक है, लेकिन और दोनों डिसॉल्व भी हो जाते हैं एक्सेस एक्वस NaOH में, ऐसा ही है ना, बट वो कह रहे हैं कि वी हैव ओनली वन कैटाइन. ऑलराइट, तो हम यहाँ लिखेंगे white precipitates are soluble giving a colorless solution. Okay, और आप जानते हैं कि ये दोनों ऑब्जर्वेशन दो कैटाइंस के साथ होती हैं, एक एल्यूमिनियम जो कि उसने शो कर दिया और दूसरा कह रहा है कि जिंक भी हो सकता है. ठीक है, ये दो कैटाइंस हैं जिनके साथ ये दो सिचुएशंस एग्जिस्ट करती हैं. Now the next is to 1 centimeter depth solution in a boiling tube, add a small volume of aqueous ammonia, then add more aqueous ammonia until it is in excess. The cation is aluminum. या जब small amount of aluminum and aqueous ammonia ऐड करते हैं तो white precipitates मिलते हैं. ठीक है, और आप जानते हैं कि एल्यूमिनम आयंस एक्सेस एक्वस अमोनिया में इनसॉल्युबल होते हैं. तो प्रेसिपिटेट्स रिमेन्स इनसॉल्युबल. और यही वो टेस्ट है जो कि जिंक और एल्यूमिनियम को डिस्टिंग्विश करता है, बिकॉज एल्यूमिनियम जो है वो एक्सेस एक्वस अमोनिया के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, उसके प्रेसिपिटेट्स जिंक के डिसॉल्व हो जाते हैं. ओके, और कलरलेस सॉल्यूशन देते हैं. आई होप यू रिमेंबर दैट. नाउ द नेक्स्ट इज to 1 centimeter depth of the solution in a test tube, add nitric acid, warm until no further change is seen. तो इम्पॉर्टेंट है कि आप नाइट्रिक एसिड ऐड कर रहे हैं फिर उस पर वार्म भी कर रहे हैं, और जब आपने ऐसा किया तो आपको पता चला कि गैस रिलीज हुई which decolorizes acidified potassium magnate 7. तो आप जानते हैं कि ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट. तो ऑब्वियसली जो गैस आपके पास से रिलीज हुई है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि एक गैस जो रिड्यूसिंग एजेंट हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कर सकती है. और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सी गैसेस होती हैं, हमने आपको बताया बस दो गैसेस होती हैं सिर्फ और सिर्फ, एक सल्फर डाइऑक्साइड होती है और दूसरी अमोनिया होती है. तो ऑब्वियसली ये अमोनिया तो नहीं हो सकती. ऑलराइट, इट हैज टू बी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड एसिड से हासिल होती है, अमोनिया कभी भी एसिड से हासिल नहीं होती, अमोनिया एल्कली से हासिल होती है. ओके, सो मैं आपको समझा भी देता हूँ ऐसा क्यों है. मान लीजिए कि आपके पास सल्फाइड आयंस हैं सोल्यूशन में, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में, बॉइलिंग ट्यूब में, और आप उसमें नाइट्रिक एसिड ऐड कर रहे हो यानी हाइड्रोजन आयन ऐड कर रहे हो. तो यहाँ से दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड. ये वो गैस है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये बेसिकली इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डीकलराइज कर रही है यानी पर्पल टू कलरलेस कर रही है. तो गैस इज सल्फर डाइऑक्साइड. One of the anion is सल्फाइट आयन. सल्फाइट होगा हाइड्रोजन आयन से यानी एसिड से रिएक्शन करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड देगा. ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. देन फिर आपके पास है टू द सॉल्यूशन फ्रॉम थर्ड एट एक्वस सिल्वर नाइट्रेट. आपने क्या किया, इसी का एक सॉल्यूशन का पार्ट लिया और आपने उसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड करे. सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया तो येलो प्रेसिपिटेट्स आए. तो येलो प्रेसिपिटेट्स तो हमेशा आयोडाइड के होते हैं, तो इसका मतलब आपके पास जो अदर आयन है वो आयोडाइड आयन है. ठीक है, तो एक सल्फाइड आयन हो गया, एक आयोडाइड आयन हो गया. oops, okay, that's it. Okay, turn over, that's an empty page. Then B part. Okay,
That's planning and analysis. A mixture of solid contain barium sulfate. One more thing, insoluble होता है ये in water. Okay. Now the next is sodium chloride only. Sodium chloride क्या होता है? Soluble in water. Okay. Barium sulfate, oops, उसने खुद भी बता दिया, insoluble in water. Sodium chloride is soluble in water. Fine. Describe how to separate mixture to obtain pure barium sulfate and pure crystals of sodium chloride. Okay, that's an easy. हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. हम पहला पॉइंट लेते हैं. पहला पॉइंट हम ये लेते हैं कि take a beaker, fill with water. Take a beaker and fill with distilled water. टैप वाटर कभी भी यूज नहीं करते क्योंकि उसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है, वो आपके टेस्ट को खराब कर देती है, आपके एक्सपेरिमेंट्स को खराब कर देती है. ठीक है. Now add this mixture into the beaker containing distilled water. ठीक है. मिक्सचर को डालने के बाद आप मिक्सचर को स्टर करोगे. Stir the mixture so that NaCl will dissolve. Okay, एक soluble है और एक insoluble है. Okay. जब मिक्सचर अच्छी तरह स्टर कर लेंगे तो उसके बाद आप फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करेंगे. Carried out filtration by using filter funnel and filter paper. ठीक है. Obviously जो रेजिड्यू होगा वो बेरियम सल्फेट है. Residue is barium sulfate which is collected onto the filter paper. जबकि जो filtrate है, sodium chloride है, it needs to be collected in separate conical flask. And filtrate is NaCl which can be collected in the beaker or in the evaporating dish. Okay. In a beaker or evaporating dish. ठीक है. उसके बाद हम इस रेजिड्यू को डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे. सो हम लिखेंगे वॉश द रेजिड्यू विद डिस्टिल वाटर. क्यों कर रहे हैं वॉश? ताकि अगर उसमें कोई भी सोडियम क्लोराइड का ट्रेसेस रह गए तो वो खत्म हो जाए. ठीक है. टू रिमूव traces of NaCl and dry this residue on the filter paper. Dry this residue on the filter paper. Okay. एक तो आपने कलेक्ट कर लिया प्योर क्रिस्टल बेरियम सल्फेट का. अब जाहिर सी बात है जो फिल्ट्रेट है हीट
द फिल्ट्रेट, क्योंकि वो इवेपोरेटिंग डिश में है या बीकर में है, तो आप उस फिल्ट्रेट को हीट करोगे until solution becomes saturated. ग्लास रॉड डिप करेंगे, डिप करके बाहर निकालेंगे। अगर क्रिस्टल ग्लास रॉड के ऊपर बन गया ऑटोमेटिकली, तो इसका मतलब सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो चुका है, सैचुरेट हो गया है, कॉन्सेंट्रेट हो गया है। ऑलराइट, जब आप देखेंगे कि क्रिस्टल्स अपीयर हो गए ग्लास रॉड पे, तो फिर आप सॉल्यूशन को कूल करेंगे एट आरटीपी। cool the solution until crystallization takes place. ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन जब आप करेंगे तो क्रिस्टल्स अपीयर होना शुरू होंगे। उन क्रिस्टल्स को हम ड्राई कर लेंगे। collect the crystals, wash them with organic solvent. Why not water? अगर वाटर में करेंगे तो वो तो डिसॉल्व हो जाएगा वहाँ, तो जो प्रोसेस पूरा किया वो खराब हो जाएगा। हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं उन तमाम सॉल्ट्स को उसमें से मॉइस्चर रिमूव करने के लिए, या ट्रेसेस ऑफ बेरियम सल्फेट रिमूव करने के लिए जो इनसॉल्युबल, जो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। सो वॉश देम विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जब उसको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से वॉश कर लेंगे, और वॉश का मतलब होता है, मतलब उसको प्रॉपर तरीके से नहीं धोते, हल्का सा ट्रेसेस रिमूव करने के लिए बस यूज करते हैं। वॉश देम विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट टू रिमूव ट्रेसेस ऑफ बेरियम सल्फेट एंड देन ड्राई देम on filter paper at room temperature. अच्छा, आप ये भी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको क्लास में बताया था कि सोडियम क्लोराइड जो है वो स्टेबल टू हीट है, तो आप उसको उस वक्त तक हीट कर सकते हो जब तक आप पूरे का पूरा सोल्यूशन जो है वो ड्राई ना हो जाए। आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर 6 मार्क्स। आई हैव रिटन एवरीथिंग इन ऑर्डर। आप चाहें, मैंने बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा है, आप चाहे आप पैराग्राफ की फॉर्म में लिख लीजिए, दैट्स टोटली अप टू यू, बट इट हैज टू बी इन फुल सीक्वेंस, प्रॉपर, ठीक है। Let's move on to the next question. Question number 3. A student measures the temperature change. तो जब टेम्परेचर चेंज तुम्हें करना होगा तो ऑब्वियसली उस टेम्परेचर चेंज को करने के लिए तुम थर्मामीटर यूज करोगे। Thermometer is used to measure the temperature change. सही है। During the reaction between HCl and aqueous NaOH, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक टाइट्रेशन है। टाइट्रेशन है ये, और टाइट्रेशन भी है, और आप इसको एक और नाम भी दे सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। और आप जानते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, क्लास में बताया मैंने। क्यों? क्योंकि oppositely charged cations and anions are involved in the formation of a covalent bond, which means it is a bond forming process, which is why it is exothermic. Okay. The student uses a measuring cylinder to add 25 cm cube or 1.5 mole per dm cube NaOH to the glass beaker. See guys, we know the concentration, we know the volume. तो इसका मतलब हम सबसे पहले इसके मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक और मसला, बल्कि दो बातें हैं यहाँ पर। पहली बात कि आप यहाँ पर एक 25 cm क्यूब का फिक्स्ड वॉल्यूम यूज कर रहे हो, इसका मतलब आप यहाँ पर पिपेट यूज कर सकते हो क्योंकि फिक्स्ड वॉल्यूम है, राइट। लेकिन क्योंकि ये एक्यूरेट नहीं है तो हम मेजरिंग सिलेंडर भी यूज कर सकते हैं, नॉट एन एक्यूरेट वॉल्यूम। ठीक है, तो हम मेजरिंग सिलेंडर भी यूज कर सकते हैं। उन्होंने मेजरिंग सिलेंडर यूज किया, सो दिस माइट बी द सोर्स ऑफ एरर आगे चल के।
क्योंकि एक फिक्स वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए 25 cm क्यूब की पिपेट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बट ये दोनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं इन दी एक्सप्लेनेशन। आगे चलते हैं। रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ NaOH एट 4.0 cm क्यूब ऑफ HCl टू द बीकर। अब जाहिर सी बात है ये जो वॉल्यूम आप ऐड करना चाह रहे हैं ये पिपेट से तो हो नहीं सकता क्योंकि उसके ऊपर ग्रेजुएशन नहीं होती। तो अगर मैं आपको दो एपरेटस प्रोवाइड कर दूं, एक बीकर और सॉरी एक मेजरिंग सिलेंडर और दूसरा ब्यूरेट, तो ऑब्वियसली आप ब्यूरेट यूज करोगे इसको मेजर करने के लिए। यूज ब्यूरेट टू मेजर this volume, okay? For further 4 cm cube portion of HCl and record the highest temperature reached each time, okay? The results are shown. तो आप HCl ऐड करते जा रहे हैं और उसकी बिना पर आपके पास वो टेम्परेचर जो है वो आता जा रहा है डिग्री सेल्सियस। वो कह रहे हैं नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन दिस एंड दिस। तो हमने कहा ऊपर आपको न्यूट्रलाइजेशन, आप इसको टाइट्रेशन भी कह सकते हैं, बट टाइट्रेशन में इंडिकेटर यूज करते हैं, हमने कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया, इसलिए विल गो फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके। हम इसको एसिड बेस्ड रिएक्शन भी कह सकते हैं, ऑलराइट। अच्छा, हमने ये भी कहा हुआ है कि ये एक्सोथर्मिक होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसकी जगह पे एक्सोथर्मिक भी लिख सकते हो, एग्जामिनर उसको भी करेक्ट कंसिडर कर लेगा, बट मेजॉरिटी किड्स जो हैं वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरफ जाएंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं नेम अ पीस ऑफ टेस्ट दैट कैन इंप्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड टू द बीकर। मैंने कहा था कि इट माइट बी द सोर्स ऑफ एरर, क्योंकि एक फिक्स वॉल्यूम को यूज करने के लिए हम पिपेट यूज कर सकते हैं, एग्जामिनर ने इमेजिंग सिलेंडर यूज किया है, सो दिस माइट बी द सोर्स ऑफ एरर, और उन्होंने उन पे क्वेश्चन बना लिया। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पिपेट यूज करूंगा क्योंकि मुझे एक फिक्स्ड वॉल्यूम यूज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं नेम द पीस ऑफ एपरेटस यूज्ड टू ऐड 4 cm क्यूब ऑफ पोर्शन ऑफ HCl। तो मैंने कहा था कि आप ब्यूरेट यूज करोगे मेजरिंग सिलेंडर के बजाय, तो हम यहाँ पर मेजरिंग सिलेंडर यूज करेंगे, राइट। देन एक्सप्लेन व्हाई ग्लास बीकर is not the most suitable piece of apparatus for this experiment. Neutralization is always exothermic, so obviously there might be a heat loss. तो explanation ये है कि ग्लास बीकर से heat loss होगा, ठीक है। Heat loss is possible if glass beaker is used. वो कह रहे हैं इम्प्रूवमेंट क्या होनी चाहिए, तो आप ग्लास बीकर की जगह पॉलीस्टाइरीन कप ले लीजिए, ठीक है। यूज polystyrene cup because it absorbs negligible amount of energy, ठीक है, यानी हीट लॉस नहीं होने देता, ओके। फिर वो कह रहे हैं प्लॉट द वैल्यूज ऑफ द टेम्परेचर अगेंस्ट टोटल वॉल्यूम ऑफ HCl ऑन द ग्रिड। तो y एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर लिया हुआ है एंड ऑब्वियसली x एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम ऑफ HCl है। मुझे ये वैल्यूज दी हुई थी, मैंने इन वैल्यूज को यूज करके ग्राफ प्लॉट किया। अगेन मैं आपको सजेस्ट करूंगा बहुत स्ट्रांगली कि आप ये ग्राफ जरूर खुद से प्लॉट करें, सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि स्केल कैसे लेते हैं, पॉइंट्स कैसे ड्रॉ करते हैं। आप नोट करें, मैंने यहाँ पर पॉइंट्स जो हैं वो सारे के सारे यूजुअली क्रॉस से होने चाहिए, और मैं पहले बता चुका हूँ कि पॉइंट्स क्रॉस से क्यों होने चाहिए, क्योंकि जब आपका पेपर चेक होने के लिए स्कैन होता है तो उसमें पॉइंट्स जो हैं वो अपीयर नहीं होते स्कैनर में, क्रॉस जो हैं वो सारे के सारे अपीयर होते हैं, ऑलराइट। मैंने सारे के सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए, और इसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश हो सकती है 19-20 समझते जाए आप, 19-20 का फर्क हो सकता है बिकॉज ऑफ माई आई साइड, एंड आई होप यू फॉरगिव मी ऑन दैट, बट मैंने आइडिया थ्रो कर दिया कि हाउ टू गो अबाउट दैट, और हमने ये पूरा का पूरा स्केच क्लास थ्योरी क्लास में भी कंप्लीट किया है। इनिशियली टेम्परेचर राइज होता है, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो फॉल हो जाता है, रिमेंबर दैट।
वो कह रहे हैं सर्किल द एनॉमलस पॉइंट ऑन द ग्रिड। मैंने आपको अभी कुछ अर्से पहले ये बताया था कि एनॉमलस पॉइंट उस वक्त जनरेट होते हैं जब एक्सपेरिमेंट में कोई एरर हो जाए, ड्यू टू एरर ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। और वो बहुत सारे एरर हो सकते हैं, मल्टीपल एरर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सर्किल कर दिया, ये मैंने सर्किल कर दिया एनॉमलस पॉइंट, ठीक है। ये एनॉमलस पॉइंट मैंने सर्किल किया है गाइस, आप नोट कर लें, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन बेस्ट फिट थ्रू द पॉइंट्स फ्रॉम 0 to 16 cm क्यूब। तो 0 to 16 cm क्यूब मैंने ये पॉइंट्स प्लॉट किए, ठीक है। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन बेस्ट फिट थ्रू द पॉइंट्स फ्रॉम 20 to 30। तो 20 से 30 मैंने ये मेजर ड्रॉ कर दिया है। फिर वो कह रहे हैं एक्सट्रापोलेट बोथ लाइंस सो दैट दे इंटरसेक्ट। तो जाहिर सी बात है इस लाइन को मैंने एक्सटेंड किया यहाँ से, इस लाइन को भी एक्सटेंड किया यहाँ से और एक्सट्रापोलेट हो गया ये लाइन और ये लाइन जो एक्सटेंड की है, दैट्स कॉल्ड एक्सट्रापोलेशन, ऑलराइट। उसके बाद वो कह रहे हैं आपसे use the intersection to determine the minimum volume of HCl needed to react with all of the NaOH. Okay. तो हमारे पास NaOH कितना था? कहीं लिखा हुआ है? नहीं, कहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं दिया उन्होंने। यस, दिया हुआ है 25 cm क्यूब हमने NaOH लिया हुआ है, ठीक है। और हम HCl ऐड कर रहे हैं। तो एक्चुअली what we can do is, अच्छा तो यहां से ये आएगा पॉइंट, सही है भाई, ये आएगा, ये आ जाएगा। ऑलराइट, ये एग्जैक्ट लाइन पर है, चलो ये आ गया। और ये कितने टाइम वॉल्यूम के ऊपर आ रहा है भाई? ये आ रहा है 16 18। तो मुझे लगता है कि ये मोस्ट लाइकली 17.16.4824 17.4 है ये, ठीक है। ये 2 है, ये 8, ये 6 है, तो ये बेसिकली 4 होगा बीच में ना। तो 17.4 कर देते हैं इसको, ठीक है। 17.4 cm क्यूब, ऑलराइट। फिर वो कह रहे हैं यूज द इंटरसेक्शन टू डिटरमिन द टेम्परेचर चेंज ड्यू टू द रिएक्शन। ओह दैट्स कूल। अच्छा, मेरी पहली तो बात ये सुने कि ये जो आपका रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो इसका मतलब ये इनिशियल टेम्परेचर हो गया आपका, और इसको आपने नाम दे देना है T1 का, ठीक है। और ये जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक लाइन यहाँ आ रही है, सही है। तो ये आपका फाइनल टेम्परेचर होगा, एंड ऑब्वियसली आपका T2 होगा। और ये आपका है 33, ये 34, तो ये हो जाएगा 33 पॉइंट समथिंग 2468। या ये लाइन एग्जैक्ट बनी है मुझसे? नहीं, इसमें थोड़ा सा इशू है। हाँ, एज यू कैन सी माय, यस दैट्स फाइन नाउ। ये 33.2 है, सही है। और T1 कितना है हमारे पास? 24.5। तो इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास टेम्परेचर चेंज आ जाएगा। सो ये है डेल्टा टी इक्वल्स टू T2 माइनस T1। T2 हमारे पास कितना है? 33.2। T1 कितना है हमारे पास? 24.5। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? 8.7 डिग्री सेल्सियस। तो मैं बेसिकली यहाँ पर क्या लिखूंगा?
8.7 degrees Celsius. Okay, ऑलराइट गाइस। अच्छा, बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये जो टेम्परेचर चेंज है ये आपने केल्विन में क्यों नहीं लिखा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। प्रैक्टिकली 1 degree Celsius is always equals to 1 Kelvin for change in temperature. इसलिए चेंज इन टेम्परेचर को हम कभी भी केल्विन में कन्वर्ट नहीं करते, उसको डिग्री सेल्सियस में ही लेते हैं। इसलिए एग्जामिनर ने भी यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में ही लिया है। Okay, next is the heat change during this reaction is calculated using the expression as shown. That's a very important formula in AS chemistry as well as in A2 chemistry. I'm surprised कि examiner ये आपसे पूछ रहे हैं, despite the fact he has not given this information in the syllabus. इसका मतलब आपको syllabus से 10 से 15% extra पढ़ना होगा during your theory classes. And see guys, 1 cm cube is always equals to 1 gram. अभी मैंने कुछ अर्से पहले आपको पेपर सॉल्व करते हुए ये इन्फॉर्मेशन दी है, आज उसने आपको लिख के भी दी है, ठीक है। और देखिएगा आने वाले पेपर में ये इन्फॉर्मेशन भी दे देगा, बिकॉज ये सारी इन्फॉर्मेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ये बात और है कि सिलेबस में गिवन नहीं है, बट पता होना चाहिए कि फॉर चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 केल्विन। गाइस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन केम, ठीक है। हीट चेंज को हम डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन को एम से, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सी से, और टेम्परेचर चेंज को हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ऑलराइट। वो कह रहे हैं डिटरमिन द वैल्यू used for the mass of solution in the calculation of this heat change. So मैं फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, डेल्टा Q इक्वल्स टू अच्छा, थिंग इज कि हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। टेम्परेचर चेंज तो हमें पता चल गया यहाँ से 8.7। मैं थोड़ी सी वैल्यूज कोट कर देता हूँ आपको। 8.7 स्पेसिफिक कैपेसिटी हम हमेशा वाटर की यूज करते हैं, विच इज 4.18। ये भी आपके पेपर में गिवन नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ये मास ऑफ सोल्यूशन है। और ये जो मास ऑफ सोल्यूशन है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मास ऑफ सोल्यूशन इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ NaOH प्लस वॉल्यूम ऑफ HCl। तो अगर आपको याद हो, मैंने वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना यूज किया था, 25 cm। ओके, और वॉल्यूम ऑफ HCl ड्यूरिंग टाइट्रेशन कितना यूज हुआ था, वो हम ग्राफ से डिटरमिन कर रहे हैं। वो हमारे पास कितना था, 17.4 cm3, राइट। सो मैं 17.4 cm3 ले लेता हूं। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना होगा, 25 प्लस 17.4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 42.4 cm3। And according to this concept, 1 cm3 is always equals to 1 gram. तो अगर ये मेरा पहला स्टेप मान लीजिए पूरा, तो मेरा सेकंड स्टेप पे 1 cm3 equals to 1 gram। तो अगर आपने 42.4 cm3 लिया है, तो बताइए मास कितना होगा, सेम हो जाएगा 42.4 ग्राम, ठीक। Oh my goodness. Next is the actual heat change of this reaction is much greater than the value calculated using the expression in A part this. Okay. A part. Okay. So इसके थ्रू जो वैल्यू है वो ज्यादा आ रही है as compared to this जो कि हमने पहले कैलकुलेट की थी। Suggest a reason for this difference. So reason is might be the heat loss, nothing than that. Heat may be lost during the experiment. Heat may be lost during the experiment. ठीक है, that's the end of
this question. Let's move on to question number 4. The apparatus shown is used for the electrolysis of dilute sulfuric acid to produce hydrogen gas and oxygen gas. That's what we have done in the class. मेरे पास electrolyte है dilute sulfuric acid, और क्योंकि जाहिर सी बात है dilute की टर्म यूज कर रहा है, इसका मतलब वाटर भी होगा, हमने वाटर भी लिख दिया। हमने आपको क्लास में बताया था कि जब भी आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट आए, यकीनन उसमें 2 डिफरेंट कैटाइंस और 2 डिफरेंट एनाइंस होंगे। सल्फ्यूरिक एसिड में H+, वाटर में भी H+, यानी हाइड्रोजन इज द कॉमन कैटाइन इन बोथ, ओके। वेयरएज यहाँ पर एनाइन होगा सल्फेट और यहाँ पर एनाइन होगा हाइड्रोक्साइड आयन। ऑलराइट, हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन लाइन ऑफ डिस्चार्ज से करीब है, so it will discharge first from the electrolyte at cathode, hydrogen gas मिलेगी। Hydroxide ion is closer to the line of discharge, discharge at anode, in the form of oxygen gas, okay। So anode पे oxygen gas है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस है, ओके। आई होप यू रिमेंबर दैट। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव टर्मिनल है आपका, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसका मतलब ये आपका इलेक्ट्रोड कौन सा हो गया, कैथोड, ओके। और ये आपका कौन सा हो गया, एनोड, बिकॉज इट इज अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ओके। यानी ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है बिकॉज पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है बैटरी के, ओके। और आप नोट करें यहाँ पर दोनों गैसेस का जो लेवल है वो भी डिफरेंट है, ओके। वो कह रहे हैं द इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ प्लैटिनम, यानी इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किए एग्जामिनर ने, ओके। वो कह रहे हैं गिव द नेम ऑफ ईच इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज बेसिकली एनोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज बेसिकली कैथोड। फिर वो कह रहे हैं द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज शोन। हाँ, ये मैंने क्लास में करवाई आपको, और मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया था कि ये कैसे फॉर्म होती है, और मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया था और ये इक्वेशन लिखवाई थी, और मैंने कहा था आपको दोनों में से जो अच्छा लगता है वो प्रिपेयर कर लो, और मैंने कहा था ये ज्यादा आसान है बिकॉज एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप इसको बैलेंस करने बैठो, तो यू गाइस नीड टू रिमेंबर दिस। वो कह रहे हैं गिव द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि जितने इलेक्ट्रॉन्स एनोड से रिलीज होते हैं वो सारे के सारे कैथोड पे गेन होंगे, तो कैथोड पे हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और गेन करके कन्वर्ट हो जाएंगे हाइड्रोजन एटम में। आप सब जानते हैं कि हाइड्रोजन नेवर एग्जिस्ट इन मोनोटॉमिक स्टेट, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन डायटोमिक स्टेट। वन मोर थिंग, अगर यहां से 4 इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो ऑब्वियसली 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे, एंड फॉर दैट आई नीड 4 हाइड्रोजन आयंस, एंड व्हिच इज व्हाई वी नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन बाय लाइक दिस। स्टेट सिंबल्स मांग नहीं रहे, उन्होंने खुद ने भी नहीं लिखे हुए स्टेट सिंबल्स, इसलिए हमें भी स्टेट सिंबल्स लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू, ऑलराइट। Next is describe test used to identify the gases produced। ऑक्सीजन गैस का टेस्ट बहुत ही फेमस टेस्ट है, और वो टेस्ट है यूज द बर्निंग स्प्लिंटर। तो बर्निंग स्प्लिंटर relights it, बल्कि इस तरह से यूज द बर्निंग स्प्लिंटर इन द जार, इन द गैस जार। तो आप यहाँ लिखेंगे गैस जार, it relights a glowing splinter। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट, use the burning splinter in the gas jar। ऑब्जर्वेशन क्या है, it burns with a pop sound, it burns with a pop sound। So that's the end of our second question, I mean fourth question। Let's move on to the next one।
Fifth, a student uses the apparatus shown to investigate the rate of reaction between excess copper to carbonate. So first of all, copper to carbonate has a green color. ये green solid होगा और उसने यहाँ लिखा हुआ भी है solid. Okay, so this is green solid. And dilute sulfuric acid is colorless. दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, वाटर बनाएंगे और सॉल्ट बनाएंगे, एंड दिस सॉल्ट इज कॉपर सल्फेट. याद रखिएगा, दिस सॉल्ट इज बेसिकली कॉपर सल्फेट ब्लू, और क्योंकि उसने एक्वस की वर्ड यूज की, इसका मतलब ये ब्लू सॉल्यूशन होगा. ओके, अगर ये सॉलिड होता तो ये वाइट होता, उसने एक्वस बोला, इसका मतलब ब्लू सॉल्यूशन है. ये आपकी बंग है, ये आपका कॉटन थ्रेड है, ये आपकी कॉनिकल फ्लास्क है, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ये गैस ग्रेजुएटेड गैस रेंज है. आई होप यू रिमेंबर कि मैंने आपको ये पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाया है अलोंग विद द डायग्राम्स, एंड नाउ यू हैव रियलाइज्ड कि ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं क्योंकि एग्जामिनर एप्रेटिसेस वगैरह सब पूछ रहे होते हैं आपसे. एंड यू हैव रियलाइज्ड वन मोर थिंग कि हमने एक थ्रेड को कनेक्ट किया था क्लास में और हमने ट्यूब के साथ उसको ले लिया था, याद है? और इस ट्यूब के अंदर हमने बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट रखा हुआ है. वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई द पीस ऑफ एपिटस लेबल्ड एक्स, तो आप कहेंगे ग्रेजुएटेड गैस रेंज. ग्रेजुएटेड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस पर ग्रेजुएशन मार्क हुआ हुआ है. ओके, the student starts the reaction by tipping the sample tubes so that the copper to carbonate and acid come into contact. याद है ना, हमने कहा था कि हम कॉर्क लगाने के बाद इस थ्रेड को थोड़ा सा पुल करेंगे तो ये टिप हो जाएगी इस सॉल्यूशन के अंदर, फिर आपस में रिएक्शन करेंगे. फिर हमने ये भी क्लास में कहा था कि हम इस कॉर्क को हटाए बगैर, इस ट्यूब को यूज किए बगैर दोनों को मिक्स कर दें, यानी यहाँ से हम कैल्शियम कार्बोनेट डायरेक्टली ड्रॉप कर दें इसमें, ये ट्यूब यूज ना करें. फिर क्या होगा भाई, अगर मैं कॉर्क के बगैर कैल्शियम कार्बोनेट डायरेक्टली ऐड करता हूँ विदाउट यूजिंग दिस ट्यूब, तो जाहिर सी बात है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और ये एस्केप कर जाएगी यहाँ से. जब एस्केप कर जाएगी तो यहाँ तो गैस कलेक्ट नहीं होगी, तो आई वोंट बी एबल टू कलेक्ट द गैस इन द गैस रेंज एंड गैस विल एस्केप. तो वो पूछ रहे हैं आपसे, एक्सप्लेन व्हाई दिस मेथड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ एडिंग कॉपर टू कार्बोनेट टू द एसिड and then replacing the bunk. That's the same question I have raised in the class. I've raised right now in this exam question paper. So आप बताइए. This is to prevent the escaping of gas. ठीक है, एक और भी आंसर हो सकता है, बस यही आंसर है. This is to prevent the escaping of gas. हमने इसकी टिपिंग की, टिपिंग द सैंपल ट्यूब. Next, oh my goodness, okay, the student takes a reading on apparatus X every 10 seconds, and the reaction has stopped. The student plots a graph of the results. Give the labels for each axis on the graph. जाहिर सी बात है, गैस कलेक्ट कर रहे हो तो मैंने क्लास में बताया था कि वॉल्यूम ऑफ गैस, any volume of carbon dioxide gas needs to be collected on the y-axis in cm cube and time has to be on x-axis in seconds. कैसे पता चला seconds? क्योंकि वो कह रहे हैं आपसे क्वेश्चन के अंदर कि every 10 seconds हम कलेक्शन कर रहे हैं गैस का. ठीक है, तो उसमें हॉरिजॉन्टल एक्सेस क्या हो जाएगा आपके पास, टाइम इन सेकेंड्स. वर्टिकल एक्सेस पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम of carbon dioxide gas in cm cube. Then फिर आपके पास है list 3 things the student sees happening in the flask during the reaction. तो पहली जो चीज एग्जामिनर बच्चे को नजर आनी चाहिए वो है effervescence of carbon dioxide gas. तो हम बोलेंगे effervescence of a gas is given. ठीक है, दूसरी बात, ये आपका सॉलिड है, ये हो गया एक्वस में, इसका मतलब ये सॉलिड डिसअपियर हो जाएगा. तो आप ये भी लिख सकते हैं, green solid disappears.
सही है। और तीसरी ऑब्जर्वेशन ये कि भाई ये बन रहा है एक्वस मीडियम में, तो इसका ब्लू सोल्यूशन अपीयर होगा, है ना। तो आप लिखते हैं यहाँ पर ब्लू solution appears. Okay, next, use the graph to explain what happens to the rate of reaction during the reaction. अगर आप नोट करो थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करके, ये काफी खराब बना है बट थोड़ा तमीज का बना लेते हैं। यस, एक टेंजेंट तो ये आ गया आपके पास, सही है। ऑलराइट, फिर आप टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर लो, ऑलराइट, फिर टेंजेंट आप यहाँ ड्रॉ कर लो, फिर आप टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर लो, फिर आप टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर लो, राइट, फिर आप टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर लो। ऑलराइट, आप नोट करें इनिशियल जो टेंजेंट है वो हायर है, और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है टेंजेंट कम हो रहा है, ग्रेडियंट कम हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है। ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। तो हम यहाँ लिख सकते हैं as with time just hold on a second. Okay, so with time gradient decreases, so this decreases the rate of reaction. Okay, that's the end of this question, that's the end of paper as